بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 1958 کی بات ہے جب جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ سیٹھ عابد اور قاسم بھٹی خلیج کے کسی ملک سے سونا اسمگل کر کے پاکستان لا رہے تھے کہ مارشل لا کے نفاذ کی خبریں سن کر انہوں نے اسمگل شدہ سونا بحیرہ عرب میں کہیں چھپا دیا، اور یہ سونا کئی برس وہیں سمندر میں کسی مقام پر پڑا رہا۔ بعد میں یہ سونا سیٹھ عابد کے ہاتھ کیسے لگا، سیٹھ عابد کون تھے، میں سنانے جا رہی ہوں ان کی زندگی کی مکمل کہانی۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ ان کا پورا نام شیخ عابد حسین تھا۔ کراچی کا صرافہ بازار کسی زمانے میں کامل گلی میں ہوا کرتا تھا۔ اسی صرافہ بازار میں پاکستان کے نامور بزنس مین سیٹھ عابد کے والد کی دکان بھی ہوا کرتی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ وہ صرافہ بازار میں ایک ہاتھ میں کینچی لے کر گھوما کرتے تھے، اور جہاں کسی شخص کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں دیکھتے وہیں کینچی سے اس کی مونچھیں تراش دیتے تھے، کیونکہ یہ سنت رسول کے عین مطابق تھا۔ اللہ نے انہیں 6 بیٹے عطا کیے، جن میں سے آج کتنے زندہ ہیں اس کا تو مجھے علم نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ان کے 6 بیٹوں میں سے ہر ایک ارب پتی تو ضرور ہے۔ ایک اور بات جو ان بھائیوں میں مشترک تھی وہ یہ ہے کہ سب کے سب حاجی تھے۔ سیٹھ عابد قصور کے سرحدی علاقے میں 1936 میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ سیٹھ عابد 1950 میں اس وقت کراچی میں منتقل ہو گئے جب ان کے والد نے کراچی کے صرافہ بازار میں سونے اور چاندی کا کاروبار شروع کیا۔ کچھ ایسے ماہی گیر جو دبئی سے کراچی سونے کی سمگلنگ کرتے تھے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ان سے ملاقات کے بعد سیٹھ عابد نے سونے کی سمگلنگ کی دنیا میں قدم رکھا۔ 50 کی دہائی کے اختتام تک انہوں نے ایک ماہی گیر قاسم بھٹی کے ساتھ مل کر پاکستان میں سونے کی سمگلنگ میں اپنی اجارہ داری قائم کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ سیٹھ عابد کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ کراچی کی بندرگاہ، پنجاب کی سرحد، حکومتی انتظامیہ اور سیاسی حلقوں کے علاوہ سرحد کے دوسری جانب اور اس سے آگے بھی بہت سے کام بآسانی سر انجام دے سکتے تھے۔ سیٹھ عابد کے رابطے اتنے بڑھ گئے، لندن، دبئی اور دلی میں بھی ان کا اچھا اثر و رسوخ قائم ہو گیا، اور 1950 سے 1980 کے دوران انڈیا کی سونے کی سمگلنگ پر قائم اجارہ داری کو بھی ختم کر دیا۔ سیٹھ عابد کے بھائی حاجی اشرف، جو بہت فراوانی کے ساتھ عربی بول سکتے تھے، دبئی میں مقیم تھے، جبکہ ان کے داماد غلام سرور اکثر و بیشتر دلی جاتے تھے اور سونے کے سمگلر ہربنس لال سے ملاقات کرتے تھے۔ سیٹھ عابد کا نام انڈین پریس میں اس وقت سامنے آیا جب 1963 میں ٹائمز آف انڈیا نے خبر دی کہ پاکستان کے گولڈ بادشاہ کے انڈیا میں روابط ہیں، جبکہ ان کے بہنوئی کو دلی میں سونے کی 44 اینٹوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سیٹھ عابد کا کام مزید وسیع ہوا تو انہوں نے پنجاب کے سرحدی علاقے کے دیہاتوں میں رہنے والے کچھ ایجنٹس کو سونے کی سمگلنگ کی فرنچائز دی۔ 1950 اور 1960 کے عشروں میں دنیا بھر میں سیٹھ عابد کی سمگلنگ کی تجارت نے فروغ پایا، اور مزے کی بات یہ کہ کبھی کبھی انہیں ریاست کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی تھی۔ لاہور، کراچی اور لندن میں سرمایہ کاری کی بدولت سیٹھ عابد پاکستان کے امیر ترین افراد میں گنے جانے لگے۔ 1970 کی دہائی میں سیٹھ عابد کی سمگلنگ کی وسیع کارروائیوں کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران کچھ رکاوٹوں کا سامنا بھی رہا، اور ان کے کچھ اثاثوں پر قبضہ کر لیا۔ 1974 میں کچھ ایسا ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ لاہور شہر میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر پولیس کے ایک بڑے چھاپے میں پاکستانی کرنسی، جس کی مالیت تقریباً 12.2 ملین تھی، برآمد ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 40 لاکھ مالیت کا سونا،
20 लाख मालियत की स्विस घड़ियां भी कब्जे में ली गईं। इस छापे में लाहौर पुलिस ने 3 गाड़ियां और दर्जन भर घोड़ों को भी अपनी तहवील में लिया, जिन्हें गैर कानूनी सामान के नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अखबारात ने इस खबर की सुर्खी कुछ ऐसे लगाई: पाकिस्तान की तारीख का स्मगलिंग का सबसे बड़ा केस और पाकिस्तान के गोल्ड किंग सेठ आबिद पर आलमी सतह पर स्मगलिंग कार्रवाइयों में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया गया। वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने सेठ आबिद इंटरनेशनल स्मगलिंग केस के लिए एक खसूसी ट्रिब्यूनल कायम किया। इस ट्रिब्यूनल ने दर्जनों गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए, जबकि मुतअद्दिद वार्निंग के बावजूद सेठ आबिद ट्रिब्यूनल के सामने पेश ना हुए। सेठ की गिरफ्तारी का मामला न सिर्फ पाकिस्तानियों की रोजमर्रा की गुफ्तगू का हिस्सा बन गया, बल्कि भुट्टो हुकूमत के लिए रियासती रिट का भी एक टेस्ट केस बन गया। पाकिस्तान में इंतहाई मतलूब शख्स की तलाश के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिनमें पाकिस्तानी फौज, पुलिस और रेंजर और नेवल गार्ड की छापामार टीमों को तश्कील दिया गया। कराची में सेठ आबिद की रिहाइश गाह पर भी छापा मारा गया, जहां से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी और सोने की ईंटें भी बरामद की गईं। 1977 में जब कराची कोस्टल गार्ड्स को ये इत्तला मिली कि सेठ आबिद नॉर्थ नाज़िमाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आ रहे हैं, तो वहां भी छापा मारा गया, लेकिन इससे पहले ही सेठ आबिद वहां से फरार हो चुके थे। सितंबर 1977 में सेठ आबिद ने अपनी मर्जी से ज़िया की फौजी हुकूमत के सामने रजाकाराना तौर पर हथियार डाल दिए और अपने जब्त शुदा असासों की वापसी के लिए बातचीत की। उस साल दिसंबर में सेठ आबिद ने कुछ फलाही काम भी किए। सेठ अब कोई कारोबारी मुजरिम नहीं, बल्कि एक पुरअज़म मुहब्बे वतन बन चुके थे, जो रियासत और माशरे की भलाई के लिए फराख दिली से अतियात दे रहे थे। 1990 की दहाई तक वह लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वसी प्रॉपर्टी रखने की वजह से शहर के सबसे ज्यादा वसाइल रखने वाले प्रॉपर्टी डेवलपर बनकर उभरे। वो कराची में भी कई जायदादों के मालिक थे और पनामा लीक में नाम आने के बाद उन्होंने अपने असासे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में मुंतकिल कर दिए थे। साथियों, स्मगलिंग की दुनिया में उनके कारनामों के बारे में बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं। जब अखबारात ने उन्हें बदनामे ज़माना पाकिस्तानी सोने के बादशाह स्मगलर की हैसियत से पेश किया, तो सेठ ने उसके खिलाफ एहतजाज किया और अपने आप को ऐसे लोगों में से एक शख्स के तौर पर पेश किया जिसने सोने को आम लोगों की रसाई तक पहुंचाया। सरहदी कामों के बारे में दुनिया के सामने अपने विजन को वाज़े करते हुए सेठ आबिद ने लाहौर के एक अखबार के एडिटर को बताया, मुझे सोने का बदनाम स्मगलर क्यों कहा जाता है? मैं अपनी बहनों और बेटियों की शादियों के लिए सस्ता सोना फराहम कर रहा हूँ। मैं माशरे और रियासत के लिए उम्दा खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। किसी भी तारीफ और पहचान की बजाय मैं बदनाम हो चुका हूँ। साथियों, सेठ आबिद ने 84 बरस पर मुश्तमिल तवील उम्र पाई। सेठ आबिद 8 जनवरी 2021 को मुख्तसर अलालत के बाद वफात पा गए, लेकिन उनकी शख्सियत आने वाले दिनों में कई अशकाल और मानों में जिंदा रह सकती है। सेठ आबिद की अगर निजी जिंदगी के बारे में हम बात करें तो सेठ आबिद के 3 बेटे और एक बेटी थी। उनमें से 2006 में उनके बेटे हाफिज अय्याज को नामालूम वजूहात की बिना पर उन्हीं के गार्ड ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था, जिसका सदमा सेठ आबिद को मरते दम तक रहा। पाकिस्तानी ज़राए अबलाग में शाया होने वाली खबरों को देखा जाए तो सेठ आबिद के बारे में कुछ कहानियां भी गर्दिश करती नजर आती हैं। उनकी जिंदगी के चंद किस्से मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। बहुत कम लोग इस हकीकत से आगाह हैं कि जब अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट दरामद करने पर सख्त पाबंदी आयद कर रखी थी, तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट बहरी रास्ते से पाकिस्तान पहुंचाया था। जुल्फकार अली भुट्टो इस जमाने में पाकिस्तान के वजीर आजम थे। उन्होंने 5 करोड़ रुपए पीपल्स पार्टी के लिए बतौर फंड सेठ आबिद से तलब कर लिए। उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। भुट्टो साहब की हिदायत पर सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए हर जगह छापे मारे जाने लगे, लेकिन वो मौजूद होते तो भी हाथ ना लग सके। इस सिलसिले में एक दिलचस्प किस्सा ये है कि सेठ आबिद की इकलौती बेटी
नुसरत शाहीन की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापा मारा गया। फौजी सेठ आबिद की साहिबजादी को ट्रक में बिठाकर ले गए। जब सेठ आबिद के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने लंदन में ज़ेरे तालीम बेनज़ीर भुट्टो को अगवा कर लिया। अब सेठ आबिद की बेटी भुट्टो की कैद में और भुट्टो की दुख्तर सेठ आबिद की तहवील में थी। बहरकैफ दोनों में समझौता हो गया और नुसरत शाहीन और बेनज़ीर भुट्टो रिहा कर दी गई। एक और दिलचस्प किस्सा ये बताया जाता है कि सेठ आबिद और कासिम भट्टी खलीज के किसी मुल्क से सोना स्मगल करके पाकिस्तान ला रहे थे कि जनरल अयूब खान ने 1958 में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। दोनों ने मिलकर बहीरा अरब में स्मगल शुदा सोने को छुपा दिया। कासिम भट्टी की वफात के बरसों बाद सेठ आबिद ने सुप्रीम कोर्ट से इस स्मगल शुदा सोने का मुकदमा जीत लिया और ये सारा सोना सेठ आबिद के कब्जे में आ गया। याद रहे कि इसी कासिम भट्टी ने कराची के एक मारूफ होटल फ्रेडरिक्स कैफेटेरिया में सदर सिकंदर मिर्जा की अहलिया नाहीद सिकंदर मिर्जा को सोने का हार भी पहनाया था। सोने के बाद सेठ आबिद ने गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग का काम भी शुरू किया था। सेठ आबिद अपने सारे भाइयों में सबसे ज्यादा होशियार, ज़हीन और बात की तह तक फौरन पहुंचने वाले थे। उनका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता था। वो उर्दू और पंजाबी के अलावा मेमनी बोली पर भी मुकम्मल अबूर रखते थे। सेठ आबिद ने मुल्क में फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहरे और गूंगे बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए हमजा फाउंडेशन जैसे इंसान दोस्त इदारे कायम करने के अलावा सेठ आबिद ने फलाही इदारों को माली मदद फराहम की, जिसमें लाहौर का शौकत खानम कैंसर हस्पताल भी शामिल है। अगरचे सेठ आबिद ने सारी जिंदगी तशहीर से गुरेज किया, लेकिन फिर भी उन्हें शोहरत मिली। उनका नाम कौमी सतह पर उस वक्त मशहूर हुआ जब उन्होंने एक टीवी शो में नीलामी के दौरान क्रिकेटर जावेद मियां दाद का शारजा इनिंग्स में इस्तेमाल होने वाला बल्ला अपने बेटे के लिए 5 लाख में खरीदा। सेठ आबिद के 3 बेटे और 1 बेटी थी। उनमें से 2006 में उनके बेटे हाफिज अय्याज को नामालूम वजूहात की बिना पर उन्हीं के गार्ड ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था, जिसका सदमा सेठ आबिद को मरते दम तक रहा। सेठ आबिद के 2 बेटे गूंगे और बहरे थे। सुनने में आया है कि सेठ आबिद ने डॉक्टर कदीर खान को कंटेनर में पाकिस्तान स्मगल किया और ये भी कहा जाता है कि सेठ आबिद ने करेंसी नोटों पर अपनी तस्वीर छापने के बदले पाकिस्तान का सारा कर्जा उतारने की पेशकश की थी। और ज़िया के दौर में हुकूमत के पास पैसे ना होने की वजह से सेठ आबिद ने तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए पैसे दिए थे। नाजरीन, सेठ आबिद के बारे में मौजूद तमाम कहानियों और कयास राइयों में कितनी हकीकत है और कितना झूठ, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम ये हकीकत है कि सेठ आबिद की शख्सियत आज भी किसी राज से कम नहीं।